Hello, everyone, and welcome to another episode of Spiritual Cookie, where we do not chase clarity, we channel it. सो आज मैं ज़रा डिफरेंट तरीके से करना चाह रही हूँ. एज यू नो, मैं हमेशा एक नया तरीका कुछ एक्सप्लोर कर रही होती हूँ बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लोर सो मैनी थिंग्स. और मुझे लगता है देर आर सो मैनी वेज ऑफ डूइंग समथिंग कि आपका वो जर्नी एंड नहीं होना चाहिए. यू शुड कीप ऑन फॉलोइंग इट. सो let's see Oracle say okay, what are the messages that there are out there, what are the energies out there, what's going on, what's your vibe like. Let's see. Security or insecurity, it's a Leo emotion, and which means lion. Themes are creativity, courage, talent, recognition, romance, celebration, vulnerability, playfulness, love, loyalty, generosity, children. Have fun, be generous, open your heart. Okay. Standing in the spotlight. If you're able to step forward into the spotlight with confidence and poise, relish this feeling of security. However, if you're experiencing insecurity, trust that real self-expression will help to shift that feeling. So, आई पर्सनली फील इसके अंदर सन की एनर्जीज हैं, बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं. ठीक है, इट्स लाइक अ ट्रू सेल्फ. It means this oracle card, this is suggesting that you need to embrace your true self, your core self, the energy, life force, ego. You have to listen to your true self, live life to its fullest, find ways to shine. वाओ, दिस इज़ सच अ पॉजिटिव कार्ड. और ये मैसेज ये आ रहा है कि इसमें आई कैन पर्सनली सेंस दैट मे बी you are in a relationship or you're about to get into a relationship with someone and with children and so much positive. It's going to be a long-term relationship that is there to stay, that is going to build legacy, I guess. And don't we love legacy? So yeah, it's asking you to be confident and feel secure in your own skin. अपने आप को own करना सीखना होगा. ये हो रहा है, ठीक है. Stop asking for external validation. So this is the seed that is planting. अब हम अगला देखते हैं. So I was the other day I was telling a friend about these moon cycles and how there's this seed हम थॉट की डालते हैं, फिर वो जो होता है एक बिल्टअप, एक होता है जो ऑलरेडी करंट सिनेरियो होता है, और फिर एक होता है कि समथिंग दैट यू नीड टू लेट गो. सो आज हम ये मून साइकिल्स पे ही रीडिंग बेस्ड चलते हैं आगे. नेक्स्ट इज दैट व्हाट इज व्हाट इज बिल्डिंग अप. It says jubilation or restlessness. So jubilation means happiness, so are you working towards happiness, or are you restless, anxious? A dolphin jumps above the wave. ठीक है. So वो कह रहे हैं कि या तो you can feel restless, agitated, and so there's something that is really blocking you, blocking your growth, blocking your progress. ठीक है. And what is developing something there which is blocking the growth, maybe in your relationship, maybe with yourself, the relationship with yourself. It can be multiple things. आगे स्टोरी जैसे जैसे अनफोल्ड होगी हमें पता चलेगा. सेजिटेरियस इमोशन है. इमोशंस आर अच्छा, इमोशंस का बड़ा मजे का इसमें बताया हुआ है. Emotions is the cards that describes a spectrum of emotions that a sign is comfortable expressing. It means that you are going to express, if you're happy, exhilarated, you're going to express it. If you're not, you're going to do that as well. And maybe it's about building, what is developing, any obstacles that you might be experiencing in your relationship, career, or with yourself, the relationship with yourself, or with somebody who has been causing you insecurity. Probably ये होने वाला somebody who has been causing you restlessness, insecurity. They are going to overcome these challenges and step above it, just like this dolphin. And look, there's a sun as well. Sun is the most positive card in tarot. So this means that you're building up something that is going to be long term, something that is going to stay with you forever. It could be your work as well, but मुझे ज़्यादा इधर लग रहा है कि something that you want long term. Next is collaboration. This is something that already exists. A buzzing beehive produces honey. Working as a group can produce a result that far transcends what one could accomplish alone.
through mutual effort, solve problems by sharing ideas and defining collective ideals. The act of cooperation can provide a buzz of inspiration that lifts your spirits. Okay, so ये there's this honey hive और इसके इर्द गिर्द मक्खियाँ हैं और ये फिर रही हैं, right? So हो ये रहा है कि वो बताना चाह रहे हैं कि bee hive एक मक्खी नहीं बनाती. It takes, you know, a lot of bees to create that, or and then they create this hive. तो इसमें they're just saying that again मुझे लग रहा है कि it's going to be a work collaboration, or it's your personal relationship that has been causing a lot of insecurity, restlessness, but now it seems like after overcoming the obstacles of these current challenges, or you are coming in collaboration soon, or you are already collaborating with someone, but this is someone who just left you out in the cold basically. अगर ये देखो तो it just left it out on the cold. और उस टाइम पे it was जब आपके साथ कोई भी ज़िंदगी में ऐसे करे, आपकी फैमिली करे, कोई भी करे, तो उस टाइम पे अक्लमंद जो होता है ना, उसका अक्लमंद वुड बेसिकली वांट के वो वो उस अपनी चैनल करे अपनी पेन को, अपनी सॉरी इट गॉट कट, और मैं बिल्कुल मेरा ना एक तो ये अटेंशन स्पैन का बड़ा मसला है, बट आई एम ट्राइंग टू फोकस एनीवे. सो something is happening. It is something is happening. Or last card, which is what you need to let go, it's self expression, which means that you need to change the narrative that you have been telling yourself. और आप अपने आप को repeatedly, जो हम अपने आप को खुद जो gaslight करते हैं ना, वो best gaslight होता है, क्योंकि हम बड़े कॉम्प्लिकेटेड इंसान जो है ना, बड़ा मल्टी डायमेंशनल और बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड किस्म की एक चीज़ है. तो एक उसके बहुत सी चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं, एंड फिर जाके दे क्रिएट दिस एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ. लुक एट दिस पर्सन, हाउ ही सीइंग हिमसेल्फ. ये इस तरह का असल में तो नहीं है ना, दिस इज़ अ प्रोजेक्शन ऑफ हाउ ही सीज हिमसेल्फ. एंड देन देयर इज़ अ स्टार, विच मीन्स देयर इज़ होप, देयर इज़ हीलिंग. इट मीन्स दैट you are going to have a project that is going to that you are going to use to express yourself. You're going to probably have a relationship as well, जो ये शायद दोनों चीज़ें हो रही हों, बट ऐसा कोई रिलेशनशिप है जो अभी आपको बहुत इनसिक्योर, थ्रेटेंड फील करता है, आप बट देयर and which is helping you find your voice maybe. And once you overcome these obstacles and you realize, okay, so there is someone who is constantly at the back foot, or push and pull, कुछ इस तरह का dynamic चल रहा है किसी के साथ, ठीक है, but this is going to be over soon, because they are ready to let go the old narratives that they have been telling themselves about I guess anything. तो जब अवेयरनेस आती है, जब आप क्या कहते हैं, वोक हो जाते हो, थिंग्स चेंज ना. तो मे बी टाइम इज़ अबाउट टू चेंज. मुझे बहुत व्हील ऑफ फॉर्चून एनर्जीज आ रही हैं, टू बी ऑनेस्ट, बट दिस विल चेंज. अगर अभी आप सिक्योर हो तो फिर शायद आगे कोई इनसिक्योरिटी आ रही है. अभी अगर आप बहुत खुश हो तो फिर कहते हैं ना, हर चीज़ का एक साइकिल होता है. सो इट्स अप टू यू हाउ यू चैनल दैट. और इधर ये करने का पर्पज़ यही है कि वी आर ब्रेन स्टॉर्मिंग हाउ वी कैन take charge of our life in a better way and equip ourselves for these challenges that are definitely going to come. यार शुक्र है, माइक चेक करना पड़ता है, डर लगता है. जब से वो मेरी वीडियो एक मैंने पूरी शूट कर ली थी और उसके बाद वो नहीं चल रहा था ना, तब से मैं थोड़ी सी पैरानॉइड हो गई हूँ. ओके, अब हम आगे जो है ना, इसको फर्दर हम इस सिचुएशन में करते हैं कि क्या सिचुएशन है. इज दिस वर्क रिलेटेड, इज दिस पर्सनल रिलेशनशिप रिलेटेड, क्या सीन है, और ये क्या है विच इज़ लीडिंग टूवर्ड्स कोलैबोरेशन, एंड इट विल बी अ वे टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, मे बी समथिंग क्रिएटिव, something that through your creativity you're going to share your spirit with the world, I guess, something like that, something that is going to you're going to collaborate with a lot of people, something I think it is going to something that is going to give you a lot of attention as well. The spotlight isko dekh ke ho raha hai, and it is going to give you a lot of peace. It's going to give you excitement, the right kind of restlessness. It will be like something that is going to, it can be a relationship as well, which will be very balanced. It will be very mutual होगा, एक बिल्कुल भी माइंड फक टाइप चीज़ नहीं होगी, एंड स्टफ, सॉरी एक्सक्यूज माई लैंग्वेज, बदतमीज़ हूँ थोड़ी.
तो या इट सीम्स लाइक ये जो साइकिल अब हमारा स्टार्ट हो रहा है, जो कि कल से स्टार्ट, फुल मून से स्टार्ट हुआ है, कल से या परसों से, कल से, परसों से, परसों से। तो आई थिंक इस वाले में द सीड दैट यू नीड टू प्लांट इज ऑफ सिक्योरिटी, डेफिनेटली हैव फेथ इन योर सेल्फ एंड या वर्क टुवर्ड्स योर गोल। एंड ये ब्लॉकेजेस जो हैं ये जाएंगे कि नहीं, बट फर्स्ट हम स्टोरी देखते हैं कि व्हाट इज दिस आइडिया ऑफ सिक्योरिटी और इनसिक्योरिटी। वी नीड मोर क्लैरिटी, राइट? ओ माई गॉड, आई कैन नॉट मेक दिस अप। I said Wheel of Fortune, चरखे फलक, Wheel of Fortune, I said it. यार ये एनर्जीज की बड़ी गेम है, बड़ी खुशी होती है, जब आप लर्न करके कोई नॉलेज एक्वायर कर रहे होते हो एंड यूर स्टिल अ स्टूडेंट, बट यू स्टिल वांट टू गिव बैक टू द सोसाइटी बिकॉज इट्स गोइंग टू हेल्प अदर्स, सो मेनी पीपल। आप अगर किसी की सिर्फ थॉट प्रोसेस को हील करना शुरू कर दो, या उसकी कोडिंग जो वो नॉट्स होते हैं उनको थोड़ा थोड़ा सा भी रिलीफ उनको पहुंचा दो, आई थिंक इससे बड़ी मतलब ब्लेसिंग कोई हो सकती है? आई डोंट थिंक सो। चरखे फलक, इट मीन्स दैट द साइकिल इज स्पिनिंग, या एंड वही जो मैंने कहा था कि अगर सिक्योर हो तो इनसिक्योर हो रहा है, डुअलिटी का एक चल रहा है सीन। अगर इफ़ यूर एंक्शियस अबाउट समथिंग देन इट इज़ टर्निंग इनटू पीस, ठीक है, थ्रू कोलैबोरेशन विच यू ऑलरेडी हैव, you're going to find your tribe, and you're going to, you need to let go this idea of explaining it to others, justifying it to others that what you're doing and what you're doing, ठीक है। और मैंने कहीं पे पढ़ा था, it's okay to sometimes lie when you don't want to tell your personal things or anything to anyone, and it's okay to lie about it because you have the right। और अगर कोई आपकी बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहा है तो फिर हम नहीं बताना तो नहीं बताना है, नहीं करना तो फिर आप फोर्स तो नहीं किसी को कर सकते। तो या सो द टाइम इज स्पिनिंग एंड इट इज़ अगेन द डिवाइन प्लान, वॉट एवर इज हैपनिंग। अब घूम रहा है पहिया, ठीक है। नाउ इट्स टाइम फॉर सक्सेस, इट्स टाइम, एंड या सीम्स लाइक गुड थिंग्स आर ऑन देयर वे। बट अगेन वही बात है, आप कुछ होगा यार, कोई कोलैबोरेशन। यार ये देखो ये कार्ड जब क्या है, आई कैन नॉट बी डूइंग दिस अगेन। सन, सी आई टॉक्ड अबाउट द सन थिंग, समथिंग वेरी पॉजिटिव इज हैपनिंग इन योर लाइफ, ठीक है। और अगर हम इसके ब्लॉकेजेस का देखें तो you're stuck in this, यार इसकी कहाँ है ये, हाँ रुको, इसका ये बड़ा 6 of Swords वाइब है। 6 of Swords जो होती है ना, इट्स अबाउट, और रिवर्स में इट मीन्स दैट राइट नाउ you're stuck in a dark place, there's stagnation, not willing to do the inner work required for healing, running away, unwelcoming movement, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप अगर अभी किसी डार्क प्लेस में हो तो अब द साइकिल, द व्हील इज टर्निंग फाइनली, एंड इट इज़ नॉट यू समथिंग दैट यू आर डूइंग, इट्स द डिवाइन प्लान। दोनों मेजर आर्काना के ये कार्ड्स हैं, ठीक है। और ये दोनों जब आपस में कंबाइन होते हैं तो समथिंग रियली पॉजिटिव इज हैपनिंग, यू गोइंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड। अच्छा, बाय द वे इसकी जो स्टोरी है, बाय द वे लेट मी जस्ट रीड इट आउट अलाउड फॉर यू गाइज, इट्स रियली इंस्पायरिंग। क्या है 19, हाँ। Sun, optimism, success, joy, being nurtured, having what one needs to flourish, illumination, full awareness। ये भी हो सकता है कि कोई सिचुएशन है, कोई रिलेशनशिप है, क्योंकि इसके अंदर लियो इमोशन है, तो इट्स अबाउट फैमिली एंड किड्स एंड करियर एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसमें आ रहा है कि एक real self-expression will help to shift that feeling of insecurity or the dark vibes or whatever uncertainties, yeah, setbacks, whatever blockages are on your way, with positivity, and it is, and you are going to get over it because the wheel has decided to spin, ठीक है, and it is going to spin, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। तो you are stuck right now in a very 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 dark place, yeah, ठीक है, but then sun, there's hope, there's positivity, and this is, ये जो भी dark place हो रहा है, कहते हैं ना अंधेरे के बाद ही रोशनी आती है, तो वो I think अभी you are finally moving ahead again। This is 3 of Staffs। अगर इसको आप देखो तो there's this man who's waiting for his boats to arrive, or maybe he just he just departed these boats, but he's watching them from afar, right?
और वो देख रहा है एंड देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर, वाटर इज कंसिडर्ड इमोशन, सो इसका मतलब है कि इधर यू आर रिलीजिंग और समथिंग इज कमिंग टुवर्ड्स यू एंड अगेन क्या कहते हैं हर ज़वाल के बाद अरूज होता है, क्या होता है वो कुछ इस तरह का है. So yeah, you are going to get the fruit of your hard work. Probably ये जो dark place में आप हो, finally overseas connections see. यार ये बहुत ही ना वो हो रहा है. Overseas connections आ रहे हैं, ठीक है, and then you might be there's this happy outcome. So ये अभी जो भी again ये happy double confirmation हो गया happiness की, ठीक है. So the wheel is spinning in your favor, babies. And right now डोंट फील शायद, अभी ये शायद वाइब है, बस शायद के बाद हम हैप्पी हो जाएंगे, ठीक है. तो ये भी गुजर जाएगा. और हमेशा कहते हैं कि जो रिजेक्शन होती है ना, रिजेक्शन ये नहीं होती कि कुछ बुरा हो गया, इट इज़ री अलाइनमेंट, इट इज़ री डायरेक्शन, राइट. तो हम अगर सिर्फ अपने वर्ड्स को सही तरह फ्रेम करना शुरू कर देना, तो आई थिंक आप की हीलिंग स्टार्ट हो जाती है. आप सिर्फ कंपैशन और प्यार की नज़र से जब चीज़ों को देखते हो ना, तो वो ईगो बेस्ड वाली जो होती है ना, असली मज़ा आता है जब आप दिल से एक क्या कहते हैं एक ऑनेस्टी से जब चीज़ करते हो. आगे अल्लाह की मर्ज़ी होती है, होए या ना होए, ठीक है, उस काम. लेकिन इसमें द कार्ड्स आर वेरी पॉजिटिव, देयर इज़ गोइंग टू बी हैप्पी आउटकम. भाई सन से ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है ही नहीं टैरो में. नेक्स्ट कार्ड इज़ what daughter of staffs. This is basically page of wands. And look at this girl, she's getting outside the box, she's breaking the box, and she's finally free, and there's this magic around her, and you know she's finally so at peace. Look at her, and she's going up somewhere, and she's like spiritual. जैसे ऐसा लग रहा है जैसे किसी कोई उठ गया है, आज़ाद हो गया है, उड़ रहा है वो खुशी से. दिस मैजिक अराउंड एंड यू नो देयर इज दिस स्टार डस्ट एंड मैजिक, एंड एक्चुअली दिस इज़ अ वॉन्ड. तो ये यानी कि वॉन्ड एक इससे आज़ाद, जैसे कोई I don't know, somebody who decided to get out of the box, you know, breaking the box. It's about अच्छा, ये इनके ना बड़े अच्छे कीवर्ड्स होते हैं और मुझे क्योंकि आई एम स्टिल लर्निंग सो आई लाइक टू रीड देम. इट हेल्प्स मी थिंक मोर. क्रिएटिव आइडियाज़, वाइटलिटी, एनर्जी, एक्साइटमेंट, एक्सप्लोसिव एंथुजियाज्म. ये वही सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी का जो हम कर रहे थे, ये उसमें यही आ गया. So the seed that you're planting is of creative ideas, breaking outside the box, ठीक है, unrestrained, and you know you're going upward movement हो रही है. तो it's like fiery energy. There's this क्या कहते हैं एक मतलब you're turning your ideas into reality, and maybe you're finding that balance again. मुझे self expression कह रही थी, relationship जो मैं कह रही थी, the relationship with yourself. Now you're finally going to break those toxic patterns, cycles, which you have been constantly on repeat. Yeah. आज ही मैं किसी से बात करती हूँ, मैं कहती कि हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अ डिफरेंट सोल्यूशन इफ़ यू कीप ऑन डूइंग द थिंग्स सेम वे. फिर तो वो कभी भी चेंज नहीं होगा ना. तो ओ ये माय बेबी इज हियर. इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, ये करते हैं हम. हाय, उधर हाय तो करो, हाय तो करो सामने. वो ये क्या किया है, कार्ड गिरा दिया मेरा. नहीं गिर गया है, मुझे दो. किधर गिरा है. एंड द लास्ट कार्ड, इट्स मैजिशियन, अल्केमिस्ट. अल्केमिस्ट कौन होता है? जो ट्रांसम्यूट करता है, जो होता है ना इवन डार्क एनर्जी को वाइट में कन्वर्ट करता है. दिस इज नहीं, दूसरा वो एक गिरा है कायरो, नीचे गिरा है कोई. देखो इधर कहाँ गिरा है. No. So the last is magician. It means manifestation. This is a card of manifestation. It means that you are. कायरो मुझे 1 मिनट वीडियो कंप्लीट बस होने वाली है, बस होने वाली है ना. अच्छा guys, BRB. Sorry guys, I had to go for a bit. और मेरे माइक का पता नहीं वो ऊपर जो भी होता है वो गुम गया है. I guess I need to order a new mic now. बच्चों के साथ तो यही लाइफ है भाई, क्या कर सकते हैं. खैर, getting back to the topic that we were talking about, and थोड़ा सा एक हम करते हैं कि इसका अगर हम करें तो ओवरऑल एक जो जिस्ट आ रही है वो ये आ रही है कि योर लाइफ इज़ चेंजिंग, एंड द क्वेश्चन इज़, आर यू रेडी फॉर इट?
क्वेश्चन ये है, इसका ओवरऑल थीम ये आ रही है, देयर इज बिग चेंज दैट इज कमिंग एंड यू आर स्टैंडिंग एट अ टर्निंग पॉइंट, और ये कार्ड उसको वेरीफाई कर रहा है, दिस इज़ परफेक्ट व्हील ऑफ फॉर्चून स्टाइल, और एवरीथिंग इज शिफ्टिंग, but you are also shifting with it, and you just need to understand कि are you shifting or are you still clinging to that old self that was functioning out of insecurity and calling it as sabr, patience. Okay, you need to think कि आप क्या चेंज हो रहे हो, या आप अपने पुरानी वर्जन के साथ अटैच इतने ज़्यादा हो बिकॉज यू आर सो इनसिक्योर कि पता नहीं क्या होगा, तो आप जो हो यू आर जस्ट क्लिंगिंग टू योर पास्ट, ठीक है, एंड योर इनसिक्योरिटीज़ एंड कॉलिंग इट सबर, सबर, सबर. बाय द वे एक एपिसोड मुझे सबर पे भी करना है कि हाउ समटाइम्स पीपल मिस इंटरप्रेट और मिस यूज़ दिस वर्ड, कि सबर को सफरिंग के साथ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हैं, विच इज़ नॉट ट्रू बाय द वे. तो so basically you're being asked to step forward and not shrink back. सन जो है, मैंने पहले भी कहा था ये सबसे पॉजिटिव कार्ड है, तो एक हम रिकैप अभी कर रहे हैं तो क्योंकि मैं भूल जाती हूँ. तो सन जो है इट्स बेसिकली लिटरली ट्राइंग टू राइज ऑन यू एंड यू नो, बट मसला इस सारे में ये आ रहा है कि ये जो दिमाग है ना, ये जो दिमाग है ये जो है ना, बार बार जो है ना आपको याद करा रहा है द लास्ट टाइम यू नो यू गॉट बर्न, वो आपको डरा रहा है, वो सन से डरा रहा है, वो कह रहे हैं यार याद है जल गए थे, वो हो गया था, क्या कहते हैं, सनबर्न हो गया था. बट दैट्स नॉट ट्रू ना. सन जो है इट ओनली गिव्स, इट टेक्स नथिंग इन रिटर्न. वो हमें लाइट देता है, वो हमें हाँ गर्मी भी देता है, पर गर्मी हमें चाहिए भी होती है. सोचो सूरज जिन मुल्कों में नहीं आता, दोज पीपल लाइक वो स्वीडन वगैरह में, स्पेशली पाकिस्तानी हु कम फ्रॉम देयर, वो तो मतलब ये ऐसे करते हैं, तो वो कहते हैं ना कि बी ग्रेटफुल. जब आपके पास जब चीज़ नहीं होती ना, तब आपको समझ आती है उसकी सही वैल्यू, ठीक है, एंड यूजुअली इट्स टू लेट बाय देन. या फिर आपको, क्योंकि हमें वैसे भी सेल्फ ब्लेम, सेल्फ पिटी और इन स्टूपिड टॉक्सिक इमोशंस की इतनी आदत है, इतनी प्रोग्राम्ड है हमारे अंदर कि हम कहते हैं अच्छा यार. खैर, सो restlessness, jubilation, either restlessness doesn't mean that it is opposite of peace, ठीक है, ये you need to understand this. It's your body which is preparing you for some movement, ठीक है. मैंने पहले भी कहा था कि it is up to you how you take it, ठीक है. तो हम इस situation को समझ रहे हैं आगे कि कुछ ऐसा है जिसके लिए आप प्रिपेयर हो रहे हो, एंड इट्स गोइंग एंड व्हाट मूवमेंट दैट यू आर गोइंग फॉर, इट्स दिस कोलैबोरेशन, ठीक है. This collaboration, visibility, and then on yes, cars, very good. And self-expression, this is going to be an unapologetic self-expression, and you know, it kind of says that you were not meant to be small, ठीक है. You were meant to co-create with life and you know not just survive it. इस दुनिया में ना हम कहते हैं हम सर्वाइवर हैं, ज़िंदगी टेस्ट है, लोग ये भूल जाते हैं कि ज़िंदगी टेस्ट के साथ इंजॉयमेंट भी है. टीचर जो होता है जब हमारा कोई एग्ज़ाम लेता है तो वो हमें फेल करने के लिए नहीं वो एग्ज़ाम हमारा ले रहा होता, वो हमारा एग्ज़ाम हमें ग्रोथ के लिए, प्रोग्रेस के लिए होता है, ताकि जब वो एग्ज़ाम लें, टेस्ट करें, आपको वो स्टूडेंट की एग्जैक्टली पता चले कि उसके क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, वेयर इज़ द मोर रूम फॉर ग्रोथ, या इसकी क्या वीकनेसेस हैं, राइट. तो इसी तरह जो हमारे टेस्ट्स होते हैं बट वो ख़त्म भी हो जाते हैं, जैसे स्कूल के भी होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, फिर आप प्रिपरेशन होती है फिर से नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, राइट. तो इधर हमारी लाइफ भी इट इज़ सिमिलर टू दैट. और ये अब अगर एक बंदा है, एक बच्चा है फॉर एग्जांपल, वो बिलीव कर ले मैं तो हुई नालायक, और मैंने तो फेल ही होना है, यही है, तो वो फेल ही होएगा, उसका बिलीफ ही यही है, तो उसने फेल ही होना है. उसके बाद जब वो फेल होएगा वो ये नहीं कहेगा कि हाय मैं तो हूँ ही लूजर. भाई यू मैनिफेस्टेड इट, ठीक है. तो व्हाट यू मैनिफेस्ट इज़ व्हाट यू बिकम. तो अगर आपने अपने आप को इंटरनलाइज करनी है, अपने अंदर गिल्ट इंटरनलाइज है, शेम करनी है, अपने आप डेरोगेटरी कमेंट्स अपने बारे में करने हैं, तो फिर मतलब वही होना है ना. सो इट इज़ बेसिकली ये इस सारी सिचुएशन की बात ये है कि फ्रॉम एशेस राइजेस द फीनिक्स. बट ये सारी गेम है दिमाग की. पता है आजकल के ज़माने में मैं कहती हूँ कि वॉर ये नहीं होती कि बॉम्ब फाड़ दिए और ये कर दिया. असली आजकल वॉर होती है साइको स्पिरिचुअल वॉर. लोग जो होते हैं वो जब आप किसी को साइकोलॉजिकली हैंडीकैप कर दो ना, तो वो इंसान क्या होता है, मरीज़ बन जाता है.
और वो फंस जाता है, वो ट्रैप हो जाता है क्योंकि वो साइकोलॉजिकली फंसा हुआ है। असल में तो नहीं नज़र आ, असल में उसकी बॉडी से पता चलता है। सबसे ज़्यादा आप स्ट्रेस अपने बेली में स्टोर करते हो, राइट? आपने नोट भी किया होगा कि जब आप बहुत स्ट्रेसफुल हो ना तो आपका पेट फटने वाला या वो अजीब सा हो जाता है, सख्त सख्त सा हो जाता है। दैट इज़ बेसिकली एंग्जाइटी दैट यू आर होल्डिंग इनसाइड यू, ठीक है, दैट रेस्टलेसनेस। सो बेसिकली इसका जो मुझे समझ आ रहा है वो यही आ रहा है कि आई थिंक समथिंग बिग इज़ हैपनिंग इन रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू समथिंग दैट इज़ क्रिएटिव एंड इवन इतना मुझे खैर कोई पर्सनल का तो नहीं है, बट इफ़ यू वर थिंक, अगर ये बात करते हुए यू कनेक्टेड विद सम सिचुएशन रिलेटेड टू योर सम रिलेशनशिप और एनीथिंग, आई थिंक इसमें बहुत एक आप यू आई थिंक यू गॉट सीन यू गॉट यू या it was a two it was a very karmic relationship that kept on happening and happening, एक cycle है, ठीक है, but now you have decided to spin the wheel and move ahead beyond the blockages, ठीक है, blockages और ये जो dark place था, you have decided to get out of it and you are manifesting it. You know, the magician says this, that you already have the tools, ठीक है. Daughter of staffs, it is saying that you're allowed to use them with joy, not just desperation. It means जो हमारे tools, हमारे talents हैं, वो हमें सिर्फ तब नहीं use करने होते कि अब ज़रूरत है और बस ज़िंदगी मौत का मसला है. Use your brain to manifest the life you want, basically, ठीक है. You need to step outside the box. और वो बड़ा मुश्किल होता है. आपने नोट किया जब भी इंसान ना ज़िंदगी में कुछ सही करना चाह रहा होता है ना, इतने विलन्स आ जाते हैं ज़िंदगी में, और जब आप एक होते हो ना बस मोड में, तो तब कोई मसला ही नहीं होता और विलन्स भी इजी होते हैं, किसी को नहीं होता. जब तक आप नॉन एग्जिस्टेंट टाइप से होते हो ना तो गेम है, ठीक है. लेकिन जब आप when you start thinking for yourself तो फ़ौरन से आप सेल्फिश हो जाते हो, फ़ौरन से आपके ऊपर जो होते हैं ना गंदे गंदे कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं और सारे आपको तोड़ने पे लग जाते हैं. तो फिर मैं इस तरह की सिचुएशन जब मैं टॉक्सिक पाकिस्तानी डायनामिक्स देखती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ कि यार फिर इंसान फिर यही करेगा, झूठ बोलेगा, गलत चीज़ें करेगा, ठीक है, और वो कहेगा कि यार मतलब तुम लोग. मैं आज फ्रेंड से एक्चुअली ये बात करी थी कि मैंने मैंने आप सही हो के भी ना, मैंने पूरी लाइफ बड़े मेरे वैल्यूज़ होते थे, मॉरल्स एंड यू नो कि ये सही है, ये गलत है, इस तरह होता है, इस तरह, और मैं बड़ी क्लियर थी, ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग थी. बट लाइफ हैपेंड एंड ऑब्वियसली मैं भी इंसान हूँ, मैंने गलतियाँ की. आई वेंट इनटू अ वेरी अगेन द डार्क प्लेस, ठीक है. आवर एनर्जीज आर वाइबिंग. आई गेस मेरा भी कुछ होने वाला है. आई होप दिस चैनल टर्न्स इनटू समथिंग बिग 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 एंड आई कैन हेल्प सो मेनी पीपल एंड यू नो वी हैव दिस कलेक्टिव इन ओपन एंड एम्पावर्ड थिंकिंग, ठीक है. मतलब एक एम्पावर्ड कम्युनिटी हो जो ऑनेस्ट हो, उफ मज़ा आ जाए. सो आई थिंक लेट्स गेट बैक टू टॉपिक. This three of wands also suggests that you know you've been praying for whatever you've been praying for is coming. It's on the horizon and you're actually manifesting it, ठीक है. You have been doing all the right things and the time आपको लग रहा था कि एक डार्कनेस है, ये कभी एंड ही नहीं होएगी, बट अगर आप ये देखो इस डार्कनेस के बाद ही लाइट है, ठीक है, तो वो अंधेरे के बाद ही सवेरा आता है, ठीक है. So I guess you are in the right direction and you will get through this, whatever this relationship or whatever it is. Maybe this relationship is in a very dark phase right now, but the time is changing क्योंकि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता. Time is changing and I think it's going upwards and onwards, ठीक है. तो relationship wise good news, career wise good news. बस ये जो 6 of swords है ना, डार्क प्लेस वाला, इसको आप देख लो. इट कीप्स ऑन वार्निंग दैट डोंट sabotage the shift just because it feels unfamiliar, ठीक है. आप हम बहुत डरते हैं अननोन का, हमें बड़ा डर होता है, लेकिन हमें ये नहीं समझ आती कि सब कुछ तो अल्लाह मियाँ ने करना है. आपने सिर्फ अपना दिल साफ रखना है और इंटेंशंस प्योर रखनी है, बाकी तो अल्लाह मियाँ है ना. आप यूनिवर्स को जब आप सेंड ही प्योरिटी कर रहे हो, आप सेंड ही वो कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि अगर बीच में कोई चैलेंजेस या हर्डल्स आ रहे हैं और आप कहते हो ना कि मेरे साथ ही क्यों होता है, तो आप ये बात समझो कि मे बी दीज चैलेंजेस, दीज हर्डल्स आर ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, दीज आर लेसन्स, ठीक है. ये ब्लॉकेजेस, डार्क जोन, ये सारे आपको जब आप
आपको आपने कुछ करना होता है, आप इंक्यूबेट करते हो। बेबीज़ भी जो होते हैं हमारे पेट में इंक्यूबेट होते हैं, वो नज़र नहीं आ रहे होते हैं, ठीक है? बस आप बाहर से इस तरह से एक हो रहा होता है, बट यू डोंट नो अंदर क्या है, क्या सब कुछ है, राइट? और फिर 9 महीने बाद एक ज़िंदगी आ जाती है। सोचो, लाइक इट्स ब्यूटीफुल, इज़न्ट इट? आप 9 मंथ्स इंक्यूबेट करते हो बेबी को अपने अंदर, एंड देन द बेबी इज़ देयर एंड दैट क्यूट लिटिल मुंचकिन, ठीक है? वैसे बेबीज़ पैदा होते इतने क्यूट नहीं होते वैसे, 3 मंथ्स के होके क्यूट होते हैं वैसे यूजुअली। बट हाँ, मतलब यू नो यू इंक्यूबेट एंड यू आर मैनिफेस्टिंग दैट बेबी, ठीक है? यू नो इट्स इन देयर, यू कांट सी इट येट, बट यू नो इट्स देयर, इट्स गोइंग टू कम आउट, ठीक है? आप जो होते हो रियल लाइफ में भी, आई थिंक आप अपने जो आइडियाज़ स्पेशली जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप उनको इंक्यूबेट करते हो, यू कोलैबोरेट विद समवन, यू टेक हेल्प फ्रॉम अदर पीपल, यू मेक, यू नो, यू मेक इट हैपन, यू मैनिफेस्ट इट। सो इसमें हमें ये एक जो लर्निंग एक आ रही है कि हमें, द गॉड इज़ नॉट पनिशिंग अस, ठीक है? गॉड इज़ कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू पोजिशन यू, ही इज़ नॉट ट्राइंग, एक्चुअली ही इज़ पोजिशनिंग यू। वो कहते हैं ना, इसमें भी कोई अल्लाह की शिफा होगी, हमें अभी नहीं पता। वो कहते हैं ना कि हमें नहीं पता, मे बी इन द लॉन्ग रन। इसीलिए हमें कहते हैं सरेंडर टू द विल ऑफ गॉड, ठीक है? तवक्कुल यही है ना कि आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन विद मी राइट नाउ, आई डोंट नो वेयर आई एम हेडेड, आई again I'm in a very dark place, but वही बात है, hope in God that my God loves me, oh my God, he is not going to abandon me, ठीक है? और जब मैं नहीं कुछ गलत करा, मैं इस तरह हूँ तो क्यों होगा? मे बी these all are just redirections, कि मैं बार बार रास्ता गलत होता था, तो फिर जो है you know अल्लाह मियाँ would just barge in and would you know नॉट बार्जन, पता नहीं यार ये वर्ड्स जो है ना, खैर, बट यू नो ही वुड जस्ट बी लाइक, क्या कर रहे हो, ये नहीं करना, ये यहाँ आना है, ठीक है? और जब आप कभी कभी नहीं समझते ना, तो फिर एक डिवाइन नच जाता है कि ब्रो वेक अप। सी, तो एक हमें क्वेश्चन जो अपने आप से इसका एक मैं रैप अप करती हूँ, फिर लंबा हो रहा है, हमें ये करना चाहिए कि एम आई बिल्डिंग फ्रॉम सिक्योरिटी और रिएक्टिंग फ्रॉम फियर? ये हमें सोचने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है? उसके अलावा इज़ दिस डिले डिवाइन और सेल्फ इम्पोज्ड? हम लोग खुद, सबसे बड़ी जंग ही खुद के साथ होती है, हम अपने ही तो सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, है ना? तो ये जो सेल्फ आपने ये जो ये किया है, ये डिले आपके जो आ रहे हैं, ब्लॉकेजेस जो आ रहे हैं, ये आपके क्या मतलब ये खुद तो नहीं कर रहे आप, या ये मतलब, और अगर डिवाइन है तो फिर व्हाई कांट यू सरेंडर एंड लेट गो, ठीक है? क्योंकि इसके पीछे कोई वजह होगी ना, आपका कोई लाइफ पर्पस होता है, कुछ होता है, मे बी इट्स द वे ऑफ टेकिंग यू टू योर सोल पर्पस, क्योंकि डेस्टिनी तो हमारे हाथों में होता है, ये हमारे ऊपर है कि हमने उसको इन्जॉय करना है और अपनी एक यू नो मेंटल क्लैरिटी और रेजिलियंस के साथ चलना है। क्योंकि जो आपके पर्सनल, कोई भी दुनिया में जो विजनरीज होते हैं या लाइफ चेंजिंग चीज़ें करते हैं ना, वो ऐसे ही नहीं होता, दे हैव टू स्ट्रगल, दे हैव टू फाइट फॉर देयर, ओए बेबी, तो ये लो, तो उधर बैठ जाओ, तो या सॉरी। सो हमें ये चीज़ें बड़ा सोचने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला जो है ना, उसने इंसान को बनाया ही इस तरह से है कि अवेयरनेस है। पढ़ो, पहली जो रेवलेशन आई थी, इट वाज रीड, ठीक है? विच मीन्स पढ़ो, समझो, खुद को समझो, मुझे समझो, ट्राई टू लर्न मी, इल्म हासिल करने चीन तक जाओ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अवेयरनेस अवेयरनेस। और उसके लिए आप कोई भी तरीका, आपको जो भी चीज़, एनी थिंग दैट इज़ ब्रिंगिंग यू क्लोजर टू गॉड कैन नॉट बी बैड, कैन नॉट बी रॉन्ग। ये मेरा एक बड़ा कोर बिलीफ है कि मे भी चीज़ें होती हैं, सरफेस पे लग रहा होता है ये तो गलत है, हो तौबा तौबा, लेकिन जब आप उसके डेल्व करते हो ना लेयर्स में, और आप, और भाई जो चीज़ आपको, anything that is bringing you close to God cannot be bad for you, ये तो बात डन है। एंड anything that takes you away, जो आपके अंदर ये बेचैनी, वसवसे और ये सारी होपलेसनेस और ये ट्रैप्ड बॉन्डेज फीलिंग्स लाती हैं, these are haram, and I think this is how it should be, because आप ना किसी और के साथ जुल्म करो, ना अपने साथ सहो, ये रूल होता है, ठीक है? क्योंकि जुल्म सहने और करने वाला एक ही होते हैं, ठीक है? ये अब आपके ऊपर है, आपने विक्टिम माइंडसेट में रहना है और सेल्फ सैबोटाज करना है, और आपने अपना ये जो टाइम है, ये तो किसी के लिए रुक नहीं रहा, इसने तो चलता है, ठीक है? तो ये अब आपके ऊपर है कि आपने इसको, डू यू वांट टू स्टेप इनटू योर हाईएस्ट सेल्फ एंड वर्क टुवर्ड्स इट एंड मैनिफेस्ट द लाइफ you want and get what you want. Yeah, but it's coming. Whatever you're manifesting, by the way, career-wise, relationship-wise, it's coming. ठीक है? It is coming, and your intuition is telling you that it's coming, and it's a very positive change. Whatever is coming, it is, and it is a long-term one. This is this work.
if both actually, अगर ये दोनों भी चीज़ें, they are going to bring positive changes in your life and they're there to stay. तो अपने आप से हमें पूछना चाहिए कि am I ready to be seen fully or still negotiating my light? सबसे ज़्यादा होता है ना डिम द लाइट, और ये लोगों के साथ बड़ा होता है। ये आप आपके ऊपर है कि क्या आपका कैरेक्टर इतना स्ट्रांग है, खुद पे यकीन इतना स्ट्रांग है, अल्लाह पे तवक्कुल इतना स्ट्रांग है कि हम इंसान अपने बस में हमारे जितना होता है हम उतना ही कर सकते हैं, बाकी हमेशा आगे इट्स अल्लाह की मर्ज़ी, और हम आगे बेबस हो जाते हैं। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि हम अल्लाह पे यकीन करें, बिकॉज़ ही लव्स अस, व्हाई वुड ही डू एनीथिंग रॉन्ग टू अस, राइट? तो हम ये जो ये सिंफुल और शेम बेस्ड हमारा माइंडसेट है, वी हैव टू गेट अबव इट, और हमें अपने ऊपर ना इतना सख्त होने की ज़रूरत नहीं है। वी नीड टू कल्टिवेट सेल्फ लव। इस मुल्क में ये सेल्फ लव की बहुत कमी है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट होती है, एक अलग टॉपिक है, बट you get my vibe, yeah? So, I guess that's about it. And you might not always get the answers, but the signs are always there. And may you find your next sign soon. So, I am heading out and I'm going to shoot another episode after this because I'm really supercharged. So, yeah, I'm ready to be seen. Bye, guys.